नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKV और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप भांबिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। So Pradeep ji, the entire situation is hotting up everywhere. I mean, wherever I see, कहीं पर किसी के खिलाफ केस हो रहा है, कहीं पर किसी के खिलाफ केस हो रहा है। Exactly. Supreme Court has pulled up Mr. Chandrababu Naidu for jumping the gun. Yes, अरे yes. भाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट तो करते, उसके बाद आप कुछ बोलते, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई वो तिरुपति का लड्डू जो है उसके अंदर एनिमल फैट है, जानवर की चर्बी है। कि बोलने की जरूरत क्या थी अभी आपको? अभी तक आपकी जो SIT है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है। लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसके साथ किसी को खेलना नहीं चाहिए। एंड एज द सुप्रीम कोर्ट सेड, डोंट ड्रैग गॉड इनटू पॉलिटिक्स, यू कांट डू दैट। But then politicians are politicians. Not only that, God and ED. Yes, and ED. God and ED. Even the Tirupati temple Laddu scam, ED is going to come in. Yes. Like in Buddha scam, ED घुस गया है। उधर FIR फाइल नहीं हुआ है किसी और पर, ED has already taken charge. नहीं, ये बड़ा and अजीब started है। investigating सिद्धरामैया। ये बड़ा अजीब है। And और वो ईडी वाले कहते हैं, उनकी तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो ये है, वी आर गोइंग टू स्टडी द लोकायुक्त FIR। अभी आप FIR को, अभी आपने उसकी तफ्तीश नहीं की है, अभी आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं है, और उसके पहले ही आपने सीतारमैया साहब के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है। and probably the Lokayukt has not even mentioned Siddharamaiah till now. Yes. They said we need to investigate the matter. और तुरंत ED has jumped the gun. And as And always, this is notwithstanding the Supreme Court coming down very heavily on the ED at least 6 times in the last 4 weeks. ED आजकल सर हर केस में every case there are party. I'll tell you what, Karnataka Special Court has filed a case against Finance Minister Nirmala Sitharaman, BJP and the Enforcement Directorate. Enforcement Directorate is a party that the Finance Minister is using the Enforcement Directorate to extort money, funds for the electoral bonds, and they have given instances of that crime. The amount of time the ED has talked to corporates, and after ED talking, the funds have come in. There's a proper FIR. They've been forced to buy electoral bonds. Yes. That is the charge. Bilkul. So which means things are hotting up everywhere. So, but I'll tell you, Karnataka is the only state which is giving back BJP in its own terms. There's a BJP's opposition का demand है, राहुल गांधी जी का demand है कि opposition is being targeted. Karnataka is probably the only state that is giving back the BJP when they have filed a case against the finance minister, though she's got relief from the Karnataka High Court. But still, they're doing it. और राहुल गांधी साहब ने ये कहा है कि मोदी सरकार कुछ बहुत ज्यादा देर चलने वाली नहीं। That's what he said. Now I don't know what he meant by that. That is और खड़गे साहब ने ये कहा है कि भैया देखो मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, मरने से पहले इसको मोदी जी को विदा करके मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। And he was unwell in a stage, I think probably in Jammu and Kashmir. But I think that was in bad taste, very frankly speaking, because Modi ji actually called him up to inquire after his health. जब मोदी जी को मालूम पड़ा कि उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने एकदम उनको फोन किया कि भाई तबीयत कैसी है वगैरह वगैरह। We got some internal politics there. Jairam Ramesh breathing down his neck all the time when Mallikarjun Kharge square. We saw Kharge speaking out in the parliament. He said, no Jairam Ramesh, no anybody has given me the post. My post has been given by Sonia Gandhi ji. That he had to tell him, Jairam Ramesh, that's right. You've got nothing to do with it. And Jairam Ramesh, very frankly, should be the last person to speak. Because if you remember, Jairam Ramesh used to be number 2 to Sam Petroda in the rural telecom mission. That's his background. He doesn't have a political background. In any event, we'll go on to that at some point of time. Let's go straight across to 2 very, very important guests that we have at the moment. Both gentlemen, very, very distinguished in their own right. We have Mr. Ambekar from Pune. Ambekar Sahab, namaskar. Namaste. Jai Siya Ram, sir. Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. And of course our old friend Mr. Rakesh Shetty of the Congress Party. And hopefully we're going to see both of them in the Vidhan Sabha in the next few months. Hopefully. उम्मीद तो यही है कि दोनों अंबेकर साहब और शेट्टी साहब दोनों के दोनों महाराष्ट्र की विधानसभा में बहुत जल्दी हम लोगों को देखेंगे। मैं दुआ यही करता हूँ, उम्मीद यही करता हूँ। I hope that happens. So Rakesh Shetty साहब, I start with you. Sir, what is this
which is going on. अब वो सीतारमैया साहब के खिलाफ जो है वो पहले ही उन्होंने वो कंप्लेंट भी रजिस्टर कर, ECIR रजिस्टर कर दिया है, FIR नहीं है, ECIR रजिस्टर किया है अपने ईडी ने. ईडी डज नॉट रजिस्टर इन FIR. राइट. तो even before they have studied the FIR registered by the Lokayukta. What is going on over here? This seems to be they're jumping the gun. Why are they doing that? सर बताएं. नमस्कार सभी को. अम्बेडकर जी बहुत बहुत नमस्कार आपको. और आपको अभी अभी राजीव जी ने बधाई दिया और शुभेच्छा दिया कि आप आमदार बन के आए. दोनों को दिए. आपको भी. हाँ, धन्यवाद. आप लोगों को पता है कि एक प्राइवेट कंप्लेन पहले ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है. देश की फाइनेंस मिनिस्टर हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो और इनके तमाम एजेंसीज और बीजेपी के जो कर्नाटका के प्रेसिडेंट है और नेशनल ऑफिस बैरर. और कंप्लेन में ये लिखा गया, क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेन था, कि ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड कलेक्ट करने के लिए कर रही. और ये देखा गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सच हमारे बीच में आया, तब हमने देखा कि 50 कंपनियां हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है. उसमें से 23 कंपनियां वो है हु आर करंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड आइदर बाय ईडी और इनकम टैक्स. उसी तरह हमने देखा जिन लोगों के ऊपर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चालू है उनको बेल मिल रहा है. जैसे दिल्ली लिकर स्कैम में हमने देखा, जिस व्यक्ति को प्राइम एक्यूज था वो बाहर आ जाता है और कुछ दिन के बाद वो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को देते. तो लुकिंग इनटू ऑल दिस फैक्ट्स, एक एनजीओ है, उन्होंने FIR दर्ज करवाया. उन्होंने कोर्ट पे गए, प्राइवेट कंप्लेन के द्वारा FIR दर्ज हुई. और मुझे लगता है इसी को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो है सिद्धरामैया के ऊपर, उन्होंने ECR फाइल किया है. तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि अगर उनको अपने अपोनेंट्स को चुप नहीं करा सकते तो वो ईडी को भेजते, इनकम टैक्स को भेजते. और ये हमने पिछले 10 सालों से देखा है. जो लोग जैसे जो आमदार है, जैसे महाराष्ट्र में आज जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, हमें पता है कि उनको नोटिस दिया गया. उससे पहले नारायण राणे कांग्रेस में थे, उनको नोटिस दिया गया. उसके बाद प्रफुल्ल पटेल के ऊपर ईडी का नोटिस आया. प्रफुल्ल पटेल को तो दाऊद से लिंक करा दिया इन्होंने, इकबाल मिर्ची के साथ लिंक करा दिया. उसके बाद जैसे ही वो बीजेपी के साथ अलायंस में आ गए तो वापस आ गए. खुद प्रधानमंत्री, मुझे प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत विश्वास है. खुद जब प्रधानमंत्री जी भोपाल में आकर कहते कि एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी, और कहते कि सिंचन घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला, और 2 दिन के बाद अजित पवार वापस आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं और उनको डेप्यूटी सीएम का शपथ दिलाया जाता है. एक इंटरेस्टिंग आदमी है हसन मुशर्रफ, इनके ऊपर तो हाईकोर्ट का बेल रिजेक्ट हो गया था मई के अंदर, और वो जून जुलाई में वो सरकार में मंत्री का शपथ लेते हैं. और वो पता भी नहीं उसके बाद ईडी क्या उनको अरेस्ट की है कि नहीं, वो तो आज कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है यहाँ पे. वैसे ही देखा छगन भुजबल, जैसे छगन भुजबल के ऊपर FIR कर दिया था कि वो बारह सदन घोटाला का, आज छगन भुजबल को मंत्री बनाया गया. भारतीय जनता पार्टी जब 14 से पहले आदर्श घोटाला पे बात करती थी, अशोक चौहान आ गए उनके इसमें, तो उनको आज राज्यसभा भेज दिया. कोयला घोटाले की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, नवीन जिंदाल इस 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उनको साफ करके टिकट दे दिया. शेट्टी साहब, we got what you're saying. महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बीजेपी सेना महायुति से डेवलपमेंट का लहर है, समृद्धि का लहर है. सुप्रिया सुले पॉइंटेड आउट दैट पुणे MIDC से करीबन 50 कंपनी has moved out from Pune MIDC. What is the truth about that, Shetty sir? Where, because Eknath Shinde जी कह रहे हैं कि you got the biggest investments in Maharashtra, और उन्होंने करीबन 10 कंपनी उन्होंने गिनाए कि ये सब कंपनी इतने सारे इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पर आए. अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? बिकॉज सुप्रिया सुले जी ने कहा 50 कंपनी हैज मूव्ड आउट ऑफ पुणे MIDC अलोन. डेवलपमेंट. देखिए क्या है कि महाराष्ट्र के जितने लीडर है, वो एकनाथ शिंदे हो, फडणवीस जी हो, गडकरी जी हो या अजित पवार हो,
भले भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है और काम कर रहे, मगर इन किसी भी नेताओं की स्टेचर नहीं है कि ये अमित शाह और मोदी जी को प्रश्न पूछ सके। हमने पिछली बार भी देखा कि जैसे फॉक्सकॉन यहाँ से चला गया, आईएफएस इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, मुंबई को आपको पता है देश में फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कैपिटल? क्योंकि आईएफएस यहाँ पे था, उसको वो लोग ने शिफ्ट कर लिया गुजरात में। ऐसे तमाम कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज है जो गुजरात में वो लेके गए। और देखिए गुजरात में लेके गए नहीं, हम तो चाहते गुजरात भी आगे बढ़े, पर महाराष्ट्र का जो अधिकार है वो तो उनको मिलना चाहिए। गुजरात को आगे बढ़ाने के चक्कर में अब महाराष्ट्र को तो डाउन नहीं करना चाहिए। और मगर दिक्कत ऐसी है कि आज महाराष्ट्र में सीएम हो एकनाथ शिंदे, अजित पवार हो या फडणवीस जी, इनमें इतनी स्टेटस नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को पूछ पाए और एक कंपनी को जाने से रोक पाए। आज अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। और आप देखिए आज 1 लाख का इंटरिम डेफिसिट है, टोटल 7 लाख का कर्जा बन चुका है। और ये जो लाडली बहना स्कीम है, आज 4 महीने हो गए, करीबन 6 महीने से जितने पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्ट, हम तो एक कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार बोलते थे, आज 6 महीने से पूरे महाराष्ट्र में काम ठप है। कोई कॉन्ट्रैक्टर को 6 महीने से कोई पैसा नहीं दिया गया जी। और अगले महीने से पगार देने के लिए महाराष्ट्र के खजाने में पैसा नहीं Right, रहेगा। let's get Mr. Ambekar in. Ambekar साहब, would you care to say something, sir? Would you care to shed light on this, please? ये तो हमेशा का बड़बड़ है कांग्रेसियों का, उसमें कोई कहने जैसा कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभी इन्होंने बात किया कि आईएफएससी एक्चुअली उसका नाम है, तो जो आईएफएससी है वो गुजरात को लेके गए। इनको मालूम होना चाहिए कि आपके सरकार ने एक जो पॉलिसी निकाला था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ACZ, उसमें उन्होंने जाहिरात दिया था केंद्र सरकार ने, और उधर किसी भी स्टेट को अप्लाई करने का सहूलियत था। ये मैं 1997-98 की बात कर रहा हूँ। और आपके मुंबई के कांग्रेस के सरकार ने उसमें यदि उस टाइम अप्लाई किया होता और मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का एप्लीकेशन किया, उन्होंने वो आईएफएससी सेंटर अपने को लिया, खुद डेवलप किया, तो कोई बम्बई का सेंटर उधर नहीं गया है। आज भी आप चाहते हैं, आप तो अभी बहुत जोर में 2.5 साल थे आप, तो आप भी एप्लीकेशन कर सकते थे, मगर उसके लिए जो जिगर चाहिए, विजन चाहिए, कष्ट चाहिए, वो आप पे किसी में नहीं है। अभी आप बोल रहे कि ये तीनों नेताओं की दिल्ली के लोगों को बोलने की ये नहीं है, ताकत नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप दूसरे की ताकत जो बोलते हैं। मेरे को एक बोलिए, 15 साल इधर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, तो पुणे का रिंग रोड अजीत दादा को महत्व नहीं मिलना चाहिए करके पृथ्वीराज चौहान ने क्यों रोक के रखा था? ये तो तुम्हारा पॉलिसी है। तुम बोलते टाइम बोलेंगे हम महाविकास आघाड़ी, और अंदर बिगाड़ी रहता है। ये तो बोलने की बात है कि मोदी जी ने भगा लिया, इसने भगा लिया। अरे आईएफएससी सेंटर के लिए मोदी जी 17 साल कष्ट कर रहे हैं, और आईएफएससी सेंटर का जो एक आईएफएससी का हेड क्वार्टर था वो बम्बई में था। अभी जब गिफ्ट सिटी तैयार हो गई, वॉक टू वर्क कल्चर से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिटी तैयार हो गई, तो उन्होंने वो जो हेड क्वार्टर था उसके लिए एक जगह अलॉट करके उधर दिया, करके वो हेड क्वार्टर ऑल इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर का हेड क्वार्टर बम्बई से गुजरात में गिफ्ट सिटी में गया। गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है वो गुजरात गवर्नमेंट के पैसे से खुद बनाया हुआ है। जरा इंफॉर्मेशन ले लो। आईएफएससी भगा लिया, आईएफएससी भगा लिया, क्या भगा लिया? अभी डायमंड बोर्स है, बम्बई में भी है, उधर भी है। अभी आप जो गोल्ड का जो ये है एक्सचेंज है, वो उधर उन्होंने खुद तैयार किया। दुबई के बाद में भारत में पहला गोल्ड एक्सचेंज है जहाँ पे गोल्ड का फिजिकल ट्रेडिंग हो सकता है। तो ये सब मोदी जी के कष्ट का कमाल है। But Ambedkar ji, when we were very happy that IFSC इधर हमारे बगल में BKC में हो रहा था, we were very happy actually कि हम बगल में हैं, बहुत सारे आपके arbitration वगैरह, you know, but suddenly it went off. But I'm just coming to the main question. Sir, please understand, please let me speak, sir. Please go ahead. Please understand, it was only headquarter of IFSC of India. That was, ये जो आईएफएससी भारत में आगे बनेंगे उसका जो जो शिखर संस्था है, पेरेंट बॉडी है, उसका हेडक्वार्टर था। आईएफएससी इज अ डिफरेंट थिंग।
वो गुजरात में 1998 से बना हुआ है, वो तो इट्स ए डिफरेंट थिंग। बट अंबेडकर साहब एक चीज है कि आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, गडकरी साहब खुद आज हंसी मजाक में बोले कि भाई आप अपने अपने फंड्स ढूंढ लीजिए, अब सरकार के पास फंड्स नहीं है, ये लाड़की बहन ने पूरे पैसा ले लिए अपने लाड़की में। तो गडकरी साहब जाने अनजाने में मजाकिया तरीके से बोल दिया कि सरकार के पास फंड नहीं है, लाड़की बहन ने पूरा कंज्यूम कर दिया। तो गडकरी जी का क्या मजाक सच्चाई है? बिकॉज ही इज वेरी वेरी शार्प इन व्हाटएवर ही सेज। गडकरी साहब बहुत बहुत शार्प है, स्टडी बहुत जबरदस्त है उनका। हाउ डू यू सी गडकरी स्टेटमेंट, गडकरी जी का स्टेटमेंट? स्टडी तो सर सबका है, देवेंद्र जी का भी उतना ही स्टडी है, शिंदे जी का भी उतना ही स्टडी है। अभी गडकरी जी क्या बोले वो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, वो मजाक में बोले सही, उनको मालूमात है कुछ उसके लिए बोले। मगर ठीक है, एक बड़ा स्कीम लाएंगे तो स्टेट के एक्सचेकर पर कोई भी तनाव बढ़ेगा, ये तो बात कॉमन है ना, कोई भी अंडरस्टैंड करता है। फिर भी हम लोगों को देने की इच्छा रखते हैं। वैसे वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? प्रॉफिट बनाने के लिए, शिल्लक रखने के लिए वेलफेयर स्टेट नहीं है। दे हैव टू बोरो एंड स्पेंड। इकोनॉमी को महत्व देना, लोगों को महत्व देना, जी। यही वेलफेयर स्टेट का महत्व है ना। वही लेकिन उनका आज की तारीख में भी अंबेडकर साहब क्या तकलीफ क्या हो रही है, स्पेशली विद रिगार्ड टू फार्मर्स, किसानों को लेकर के बहुत तकलीफ हो रही है सर। अभी भी क्या है कि महाराष्ट्र स्टेट की ही अगर बात करें, मैं पूरे भारत के अंदर में नहीं जाना चाहता, क्योंकि क्या है कि एवरी रीजन हैज इज ओन प्रॉब्लम्स। तो हर एक कोई जो इनफैक्ट व्हेन इवन द कांग्रेस सेज एमएसपी हैज टू बी डिसाइडेड, बट द एमएसपी हैज टू बी डिसाइडेड रीजन वाइज, कि किस जगह पर कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, क्या लगती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर कॉमन, आई एग्री विद यू, बट looking at the soil fertility, looking at how much is required at one particular place and so on and so forth, so as a result of it you have to work out quite a few things. But in Maharashtra the agrarian crisis continues, sir. क्या है, अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जो भी आई हैं, मैं हर एक सरकार की बात कर रहा हूँ, अकेले आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले भी जितनी सरकारें आई हैं, हम लोगों का फोकस जो है वो सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर रहा है। जो ग्रामीण विकास जो होना चाहिए था, जो बाय द वे मुझे ये कहने में बड़ा गर्व होता है, जो जैसे आरएसएस का जो विजन था पहले और बाकी अलग लोगों का जो विजन था कि यार ये जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो क्या हम लोग वो भूल गए हैं अंबेडकर साहब? हैव वी फॉरगॉटन दैट? अगर सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करें, बताइए। मोदी जी का ही वही विजन है। और आपको मैं एक थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहता हूँ जी बोलिए। कि मैं कोकण रीजन से आता हूँ। कोकण में भी खेती का, एग्रीकल्चर का वही हालत है जो महाराष्ट्र के और हिस्सों में है। मगर आपने कभी भी कोकण में आज तक किसी भी किसान को आत्महत्या करते हुए नहीं कोंकण देखा से है। कभी रिपोर्ट नहीं आई, नहीं है। हाँ, तो Correct. आप ये जान लो कि हर एरिया के अलग अलग प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जेन्युइन है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो प्रॉब्लम गलत है, उसके ऊपर इलाज निकालना चाहिए। वैसे आप जो बोल रहे हैं वो हर एक राजकीय नेता, इवन शरद पवार जी ने आज से 10 साल पहले बोला था कि आज इसके आगे अपने बढ़ते कुटुंब को, तुम्हारे को एग्रीकल्चर पे तुम सस्टेन नहीं हो पाएंगे, तुम एक लड़के को सर्विस करने को लगाओ, ऐसा उन्होंने बोला था। अन्य रोजगार के लिए लगाओ, उसको ट्रेन करो। ये हर एक नेता बोलता है, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर उतना सस्टेनेबल नहीं है कि वो बढ़ते हुए फैमिली को कवर कर सके। ये फैक्ट है, उसके ऊपर मोदी जी ने। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा। आई एम सो सॉरी शेट्टी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बट लेट मी फिनिश दिस बिकॉज यू नो आई हैव वर्कड विद नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख के साथ चित्रकूट में मैंने खुद काम किया है, और पूरी जो गॉइटर बेल्ट है गोंडा में, वहां पर आई वाज अ वॉलंटियर विद हिम। आई वर्क विद नानाजी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब नानाजी देशमुख का जैसे जो विजन था, जिसको हमारे झंडे वाला के जितने लोग थे वो सब लोग उनको टोटली सपोर्ट करते थे, और ज्यादातर आपको भी मालूम होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अंबेडकर साहब, 99% जितने भी लोग आज की तारीख में भी चित्रकूट महाविद्यालय में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो पुराने संघ के लोग हैं। सही बात जी, लेकिन वो विजन जो था वो कहां गया? आज मुझे दिखता नहीं है सर कहीं। ना ही नागपुर में दिखता है, आरएसएस में दिखता है, ना ही दिल्ली के झंडे वाला में दिखता है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। क्या हुआ? क्योंकि ये सब लोग चले गए तो हम लोग उनको भूल गए, और हमारे पास सत्ता आ गई। मतलब 10 साल से 11 साल से, अब 11वां साल हो गया हमारे सत्ता का, तो इन सब लोगों की जरूरत नहीं है। आप बताएं सर अंबेडकर साहब, मैं दिल से पूछ रहा हूं, आप दिल से जवाब दें सर, गोल गोल जवाब मत देना, मुझे सच्चा जवाब दें सर प्लीज। सर, मैं दिल से बताता हूँ, विजन में कोई भी बदलाव नहीं है।
अभी मैं एक बात तो आपके सामने खुले दिल से बोलता हूँ कि जो इंटीग्रिटी है या जो लगाव है उसमें थोड़ा बहुत कम आता है, वो पीढ़ी का जनरेशन का डिफरेंस है। आज की जनरेशन जैसे कोई अपना लाइफ को देखती है, जी वैसे नाना जी की जो जनरेशन थी वो इतने निस्वार्थी और इतने सब अपनी ये छोड़ के लिए, देश जी, के लिए दुरुस्त छोड़ बात। देने वाले थे। जी अभी आप देखिए ना, बाबाजी आमटे जो है महाराष्ट्र की जी भूषण है, उनकी आगे की पीढ़ी उतनी एक पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी होगी, ऐसा मेरे को नहीं लगता अगली पीढ़ी होगी ऐसी। तो ये जनरेशन का प्रॉब्लम है, वो सब फील्ड में है, नॉट ओनली इन रूरल डेवलपमेंट, इन एवरीवेयर। आई एम वर्किंग इन एजुकेशन। लेकिन अंबेडकर साहब, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। यू नो व्हाट हैज हैपेंड? द बीजेपी हैज फॉरगॉटन इट्स कोर वैल्यूज। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। यू विल डिसएग्री विद मी ऑफ कोर्स। द कांग्रेस, बाय द वे, हैज स्टार्टेड टू रिकनेक्ट विद इट्स कोर वैल्यूज, विच इज व्हाई आप देखें कांग्रेस जो है वो 52 सीट से तकरीबन 100 सीट पे पहुंच गई, 99 पहुंच गई, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी कोर वैल्यूज भूल गई है? आपसे पूछ रहा हूं सर। अंबेडकर साहब, 100% नहीं भूल गई है। मोदी जी की एवरी वैल्यू जो है वो भाजपा की कोर वैल्यू के से जुड़ती है। अभी आपने देखा रहेगा मोदी 3.0 में उन्होंने जो लक्ष्य रखे हैं जी उसमें पहला लक्ष्य है कि ग्रामीण एरिया में, एक तो उन्होंने जो सोलर पैनल का स्कीम निकाला है और दूसरा स्कीम निकाला है कि ग्रामीण एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ोतरी देने का। कि हर स्कीम जो है, लखपति दीदी योजना है, उनका सब फोकस जो है वो ग्रामीण एरिया पे ही फोकस है। तो ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। I want to ask शेडी साहब, जी, most important, yes. शेडी साहब, बात यह है कि शरद पवार साहब ने आज मोदी जी को कहा कि स्टॉप डिफेमिंग द गांधी फैमिली। शरद पवार साहब ने कहा देयर सैक्रिफाइस आर ह्यूज, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉ एंड ऑर्डर, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इन्फ्लेशन, प्राइस राइज को आप संभालिए ना। आई वांट टू नो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स, सुप्रिया सुले, शरद पवार जी, सब लोग महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स बोल रहे हैं। You have taken up some matters recently, कोई सिद्धि विनायक डेवलपर्स है कनेक्टेड टू द सीएम, इसलिए काम भी नहीं किए, बहुत सारे लोगों को ड्यूप किए, एक एफआईआर उनके खिलाफ फाइल नहीं हो रहा बिकॉज इज क्लोज टू चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। कैन यू जस्ट हाईलाइट ऑन दैट? वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे हो गए, बट ये तो जेन्युइन केस जो आपने उठा लिया उसमें जरा चर्चा कर लेते हैं। we will come to Mr. Arun Kumar in just a minute. Arun Kumar जी, आपके पास आ रहे हैं, we can see you now. Welcome to the show. Mr. Arun Kumar from Patna joined us. जी, Yeah, शेट्टी साहब बोलिए, शेट्टी साहब बोलिए प्लीज। इसको कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिए कि थाना में मैं कल या और आज भी फेसबुक लाइव था कि सीनियर सिटीजन बिजनेसमैन है, 12-12 साल पहले अपना मेहनत का पैसा उन्होंने थाना के लोकल बिल्डर्स को दिया था, और जब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में कि 12 से 14 साल हो गया, अभी तक बिल्डर ने ना हमें इंडस्ट्रियल शेड बना के दिया, ना पैसा रिटर्न कर रहे। जब वो बिल्डर के ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे दादागिरी किया जाता है। जब पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखाने, तब वो जो डेवलपर है वो अपना एकनाथ शिंदे जी से मैं क्लोज हूं ऐसे प्रमाण देकर उसके ऊपर स्कॉट फ्री चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होती है। और ये सिचुएशन पूरे महाराष्ट्र में है। आप पूरे महाराष्ट्र का आज इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत देखिए, सब जगह खड्डे हैं। आप मुंबई का हालत देखिए, आज परसों के दिन 3 घंटे के लिए बारिश क्या आ गई, पूरा मुंबई स्टॉल स्टिल पे आ गया। अगले दिन हमने देखा सब जगह बड़े बड़े खड्डे हैं, और एक खड्डे पूरे देश में है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है, आप राम मंदिर की बात करो तो उसके अंदर भी पानी गिर रहा है, पार्लियामेंट के अंदर बाल्टी डालते हुए आपने देखा होगा वीडियो। महाराष्ट्र में देखिए क्या हालत है। तो जो मुख्यमंत्री 2.5 साल पहले ये वादा किया था कि संपूर्ण मुंबई को मैं सीमेंट रोड करूंगा, आपको याद होगा तो याद कीजिए, उन्होंने कहा था ये कि सीमेंट, आज 2.5 साल हो गया, खत्म होने को आया, किधर है सीमेंट रोड आपका? मतलब ये सिर्फ बात करते हैं। और अंबेडकर साहब ने जो गिफ्ट सिटी की बात की ना, मैं 3 साल तक गुजरात का प्रभारी था, तो मैं जो गिफ्ट सिटी है वो देख चुका हूँ। 4 बिल्डिंग है उस गिफ्ट सिटी में, एक तो होटल था जिसपे मैं रुका था, 2 बिल्डिंग खुद गिफ्ट सिटी का जो बिल्डिंग है, क्योंकि उनका ऑफिस बिल्डिंग है वो है, मेरे पास फोटोग्राफ्स है आज भी। और एक बिल्डिंग है जो हमारी जो NMIMS कॉलेज है, मिट्टी बाई कॉलेज, वो ट्रस्ट का एक संस्था है,
ये 4 बिल्डिंग छोड़ा तो गिफ्ट सिटी में 5वां बिल्डिंग नहीं है। तो ये जो सिर्फ पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाना कि गिफ्ट सिटी है, आगरा से बड़ा है और समुंदर से इतना नजदीक है, बेवकूफ बनाने का काम है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था तो मैं आपको अहमदाबाद में बोलता हूँ, म्युनिसिपल स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है तो दरवाजा नहीं है, गर्ल्स के लिए टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। ये पूरा देश भर में कह रहे कि हमने शौचालय बनाया, गुजरात में ये हालत है। क्या गुजरात के नेता जो सरकारी गुजरात के अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे? क्या उनके बच्चे बच्चियां ये गुजरात के जो सरकारी स्कूल है उसमें भेजेंगे अपने बच्चों को? तो ये जो गुजरात मॉडल बेवकूफ बनाने का मॉडल था जो पूरे देश को बनाया, 10 साल तक लोगों ने देखा, इसलिए 400 पार देने वाले थे ना नरेंद्र मोदी जी को, 240 में लाके अटका दिया। ये कारण है कि जो गुजरात मॉडल है वो फेलियर है और खुद गुजरात के लोग ये कहते हैं। और जहां तक महाराष्ट्र का शरद पवार साहब ने जो कहा, आपने जो स्टेटमेंट कहा, पवार साहब ने सही कहा, आपके पास सत्ता है तो आपको काम करना चाहिए। गांधी परिवार को क्रिटिसाइज करके कितना दिन आप ये करोगे? इलेक्शन के तो समय आप क्रिटिसाइज करो, हम लोग आपके प्रतिद्वंदी है, आपको करना चाहिए। फर्दर चार्ज ऑन यू शेट्टी साहब, बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर यह भी है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण टोटली और स्पेशली आप एंटी दलित, दलित विरोधी है आप। सीताराम केसरी का बार बार बीजेपी आजकल में हाईलाइट करके किस प्रकार से आपने सीताराम केसरी को हैरस कर दिया था, उनको बाथरूम में बंद कर दिया। एक एक किस्सा बीजेपी ने सुना के कहा यू आर एंटी दलित। How will you go to justify your position? भारतीय जनता पार्टी 10 साल में एक जनगणना नहीं कर पाई। आपकी सरकार 5 नहीं 10 साल थी, आप जाति जनगणना क्यों नहीं करते? आप हमको कह रहे हम विरोध है, आप लोग इस देश के लोगों को जाति, धर्म, भाषा के नाम पे कुछ तो डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं आवाज आ रही है सर, फर्स्ट क्लास आ रही है। अच्छा, ऐसी शोइंग समथिंग। विनायक अंबेडकर साहब कुछ दिखा रहे हैं। विनायक अंबेडकर साहब दिखा रहे हैं कुछ। विनायक अंबेडकर साहब आपके पास आ रहे हैं 1 सेकंड में, लेकिन उसके पहले अरुण कुमार जी वो बिल्डिंग कंटिन्यू करे, काउंट करे बिल्डिंग गिफ्ट। जी सर, मैं खुद रह चुका हूँ, मैं खुद रह चुका हूँ। अरे आप 10 साल पहले रह चुके हैं। अरे 10 साल नहीं सर, मैं अंबेडकर साहब, शेट्टी साहब, पहले की बात कर we have plenty of time, we have plenty of time, no problem। हाँ, तो अंबेडकर साहब, मैं आपको, आप गूगल मैप ओपन करके देखिए गिफ्ट सिटी, और शो खत्म होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रदीप जी और राजीव जी आपको भी कि गूगल मैप में गिफ्ट सिटी देख लीजिए, आपको गिन सकते हैं कितने बिल्डिंग वहां पे है। Mr. Arun Kumar has been waiting. He's joined us from Patna. Let's go straight across to him. Mr. Arun Kumar of the RJD. Arun Kumar जी नमस्कार। नमस्कार 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 सर, जय हिंद जय हिंद। अरुण कुमार जी, बारिश का क्या हाल है अभी बिहार में? मैंने सुना अभी बहुत बारिश हो रही है, और हाल ही में कुछ 7 दिन पहले एक और ब्रिज बह गया क्या वहां पे? एक और पुल बह गया क्या? आजकल में भी हो गया, और आजकल में भी कुछ हुआ है। ये क्या हो रहा है सर अरुण कुमार जी? ये मतलब क्या ये है? तो आप इससे पहले भी एक शो में आप ने हमें बुलाया था, मौका मिला था आपके डिबेट शो में, और पिछले 1 महीने पहले, 1 महीने से अधिक होने चला, उस समय 16 ब्रिज ध्वस्त हो चुका था जी। और फिलहाल 1 महीने बाद आपके बीच हूँ, आपके साथ डिबेट में हूँ, और 1 महीने के अंदर 6-7 ब्रिज ध्वस्त हो चुका है। यहाँ तो ब्रिज ध्वस्त होता ही नहीं, क्योंकि ध्वस्त होना भी स्वाभाविक है, और भ्रष्टाचार के गंगा में भ्रष्ट, यहाँ तो सारा सिस्टम ही नीतीश बाबू और बीजेपी मिलके जम के भ्रष्टाचार कर रही है। पुल पुलिया निर्माण के नाम पे और एस्टिमेट के नाम पे, तो स्वतःस्फूर्त है ध्वस्त तो होना ही है, और या तो बनने के पहले ध्वस्त हो रहे हैं या फिर उद्घाटन के बाद ध्वस्त हो रहे हैं। तो लगातार चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर क्षेत्र की आप बात कर लें, पुल पुलिया का ही अभी आप देखिए कि लगातार करोड़ों रुपया नीतीश सरकार तटबंध निर्माण पर खर्च करती है, और पिछले दिनों
अभी करीबन 2 दर्जन जिला बाढ़ से प्रभावित हो गए और कोसी नदी में जो पानी उफान आया है 23 जिला बाढ़ से प्रभावित है और पिछले 2 दिन के अंदर 6-7 तटबंध ध्वस्त हो गए। क्योंकि मतलब बाढ़ और सुखाड़ से निजात तो इस सरकार को दिलानी नहीं है, क्योंकि इसी बाढ़ सुखाड़ के नाम पर बीजेपी और नीतीश सरकार भ्रष्टाचार करती है। तो जम के भ्रष्टाचार हो रहा है और पिछले 20 साल से कह सकते हैं 19 साल तो 25 में तो फिर 20 साल हो जाएगा नीतीश बाबू को यहाँ शासन किए हुए, और 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार है। तो चहुओर हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की अरुण कुमार जी, तेजस्वी यादव जी नया एक संघर्ष चालू कर दिया है स्मार्ट मीटर के खिलाफ। बोले कि स्मार्ट मीटर के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों को लूटने का एक प्लान है कि पहले ही पैसा भरो, पैसा तिजोरी। आप यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करने के लिए पूरा, तो ये तेजस्वी यादव जी का ये संघर्ष, ये यात्रा, ये प्रोटेस्ट किस प्रकार से देखते हो आप? स्मार्ट मीटर, देखिए आपने सही सवाल आपने छेड़ा। अभी जो फिलहाल है पिछले 1 महीने से स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार की जनता, बिजली उपभोक्ता त्राहिमाम है। स्वतः स्फूर्त सरकार के खिलाफ सड़कों पर अलग अलग तरीके से बिहार की जनता आंदोलन कर रही है। तो इस बीच में लगातार बिहार की जनता शिकायत लेकर आ रही है नेता प्रतिपक्ष के सामने, सारे सवाल जो आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं, जन मुद्दों की राजनीति करते हैं। तो स्वाभाविक है जनता के दर्द को लेकर वो कैसे चुप रह सकते हैं। तो उन्होंने सरकार से कई सवाल लगातार वो पूछ रहे हैं नीतीश जी और बीजेपी की जो सरकार है कि आखिर आप बताइए, आप आखिर बिहार की जनता को या बिजली उपभोक्ताओं को आपने विश्वास में क्यों नहीं लिया? बगैर विश्वास में लिए हुए ये जो स्मार्ट मीटर है उसको क्यों लगाने का काम कर रहे हैं? आप अगर देखेंगे अलग अलग क्षेत्र में जाकर बिजली उपभोक्ताओं से बात करेंगे तो वो बताएंगे और बता रहे खुलेआम कि पहले की बनिस्पत जो पुरानी मीटर थी और अब जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, करीब बिहार में सरकार के अनुसार 50 लाख स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। तो तरह तरह ग्रामीण इलाकों से, शहरी इलाकों से जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है, तो कंज्यूमर का कहना है कि पहले के बनिस्पत 2 गुना 3 गुना बिल आ रहा है। अगर 5,000 पहले बिल आता था तो आज की तारीख में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो है कि 15,000 20,000 बिल आता है। तो ये है, अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरे बिहार में 2,76,000 उपभोक्ता हैं उपभोक्ता सरकार के अनुसार, उनको लगानी है। तब इस अनुसार अगर 100 रुपया भी अधिक अगर सरकार उपभोक्ताओं के साथ चीटिंग करती है तो समझिए ये फुटेज चल रही है आपके स्क्रीन पर। करोड़ का ये घपला। एक सेकंड सर, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। कैन वी शो अरुण कुमार जी विद द फुटेज प्लीज? देयर इज नो नीड टू शो मी, आई वुड लाइक पीपल टू सी इट। ये कोसी का पुल है। अभी रंजीत रंजन साहब ने, जो राज्यसभा एमपी हैं कांग्रेस के बिहार से, उन्होंने ये फुटेज शेयर करी है कि जैसे ही कोसी का पानी जो है वो बिल्कुल ब्रिज के पुल के पास आ गया तो वो देखिए लोगों में भगदड़ कैसे, किस तरीके से हो रही है, लोग चिल्ला करके भाग रहे हैं वहां से। सर कुछ बताएंगे इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो? नहीं, ये जो कोसी है, 2 बराज है, एक कोसी और एक गंडक है ना। ये सुपौल का इलाका है। यहाँ से पानी छोड़ने के बाद लगता है कि सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, लगता है एक दर्ज भागलपुर, कटिहार, 1 दर्जन जिला प्रभावित करती है। जो इस तरह के पहले आपको मैंने बताया कि अब लोग त्राहिमाम हैं और लोग अब किस सरकार
सुधि नहीं ले रही है, सरकार मस्त है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, Right, we'll गांव come का back to you, गांव sir. जलमग्न So, हो so, गया so है। there's a major crisis in Bihar at the moment. Bridges are falling. People are very unhappy with the new smart meters. Smart meters को लेकर के लोगों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है, और वहाँ पे ब्रिज और पुलिया गिर रहे हैं. But people don't seem to be taking cognizance. अंबिका साहब, इस विषय के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? Would you like to comment on this, sir? There are about 19 to 20 bridges. सर 19 से 20 ब्रिज जो है वो बह गए हैं सर. कभी सुना है किसी स्टेट में ऐसा हो जाए? नहीं, उसकी मालूमात मैं नहीं रखता हूँ सर, सॉरी फॉर दैट। जी, आई थॉट, बट तो ये बताएं सर अंबेडकर साहब, जिस विषय के बारे में अभी अभी बात हो रही थी, स्पेशली निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ एक केस कर दिया गया बेंगलोर की कोर्ट में. चलिए, उनको कर्नाटक हाई कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिल गया है, कोई बात नहीं, लेकिन केस एक्सेप्ट किया गया है. वहां पर लिखा गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मदद से पैसे एक्सटॉर्ट किए गए, उगरानी की गई है पैसे की. बिजनेसमैन को कहा गया है कि ईडी का रेड होगा आपके ऊपर, ईडी का रेड हुआ और उसके बाद उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए गए. ये चार्ज है और एक मैजिस्ट्रेट ने उसको एक्सेप्ट किया है. सर अंबेडकर साहब, लोअर कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने जो डिसीजन दिया है उसके ऊपर हाई कोर्ट ने बहुत कड़े सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि इसमें जो सेक्शन लगाया गया है 358 एक्सटॉर्शन, उसके लिए रिंग बनाना, उसके लिए कनाइवेंस करना, ये सब सेक्शन इसको अप्लाई नहीं होता है, ऐसा खुद हाई कोर्ट ने बताया हुआ है. और हमारे बिना उन्होंने तो ये शब्द वापरे हैं कि इसमें यदि ये केस चलने दिया तो इट विल नॉट बी गुड फॉर द लॉ ऑफ दिस कंट्री, ऐसा भी शब्द, कुछ सिमिलर शब्द उन्होंने, इस मीनिंग के शब्द उन्होंने यूज किए हैं. तो इसका मतलब ऐसा है, लोअर कोर्ट ने जो किया वो थोड़ा सा जुडिशियल एक्टिविज्म था, ये हाई कोर्ट को मालूम पड़ गया, तो उन्होंने पूरा उसको ब्लैंक स्थगिति दिया है. You know, विनायक अंबेडकर साहब, you want to talk about शरद पवार जी जिस प्रकार से नसीहत दिया है मोदी जी को. उन्होंने कहा, मोदी साहब आप गांधी फैमिली के बारे में बोलना बंद कर दो, उनके सैक्रिफाइसेस आर सुप्रीम. नेहरू जी 14 साल जेल में थे, उसके बाद इंदिरा गांधी का सैक्रिफाइस, राजीव गांधी का सैक्रिफाइस, आप ये सब छोड़ के आप यू ट्राई टू कंट्रोल प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर. बोले यहां पर आप ध्यान दो, आप अपना काम ठीक से करो. ये नसीहत आप किस प्रकार से देखते हो शरद पवार साहब? इज इट पॉलिटिक्स और इज इट, हाउ डू यू सी दैट अंबेडकर साहब? इट इज 100% प्योर पॉलिटिक्स, क्योंकि शरद पवार जी जो खुद केंद्र में मंत्री रहे इतने साल के लिए, उन्होंने भी तो विकास के ऊपर, उनका क्या प्लान है? वो जब वोट मांगते हुए महाराष्ट्र में दर दर भटक रहे हैं, तो उन्होंने भी बताना चाहिए कि हमारा महाराष्ट्र के लिए क्या प्लान है. वो उनके भाषण में कितना टाइम, कितना समय वो डेवलपमेंट के लिए देते हैं. और यदि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का हमेशा जो 30 to 50 मिनट्स का भाषण रहता है वो छानबीन करके अच्छी तरह से सुना, तो उनको नरेंद्र मोदी हर भाषण में अपनी सरकार ने क्या किया, आगे क्या होना चाहिए, भारत का कैसा रूप होना चाहिए, इसके ऊपर 10 से 15 मिनट हमेशा बोलते हैं. तो उसमें से, उनके भाषण में से अभी जैसा राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोल सकते हैं कि बाबा मोदी घबरे हुए हैं, ये तो उन्होंने तो एकांत में बोला घबरा हुआ है वगैरह ऐसा, तो उसको भी नसीहत दे दो ना. उनके पांव तले लगे आप, जिनको गाली देके आपने सेपरेट पार्टी बनाई और आपका राजकीय जीवन एस्टेब्लिश करने का, राजकीय पक्ष एस्टेब्लिश करने का ट्राई किया और आगे जाके फिर उनसे ही शामिल हो गए, तो उनको भी नसीहत दे दो ना. राहुल गांधी को भी उन्होंने बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए करके, मगर ये प्योर पॉलिटिक्स है सर. जी, लेकिन एक छोटी सी करेक्शन, शरद पवार साहब ने ये जरूर कहा है कि 14 साल जेल में रहे. पंडित नेहरू 14 बार जेल गए थे और 9 साल के लिए जेल में थे टोटल. 14 बार जेल गए थे और 9 साल के लिए थे. एग्जैक्टली वो शरद पवार साहब ने 14 साल कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है. और लेकिन ये भी याद रखें, जैसा ये भी अंबेडकर साहब ने कहा कि 1999 में शायद शरद पवार जी को नेहरू गांधी फैमिली के जो कुर्बानियां शायद उनको याद नहीं आई उस वक्त जब उन्होंने एनसीपी बनाई, तो वो शायद भूल गए होंगे. लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंबेडकर साहब, ये बड़ा पेचीदा सवाल है, थोड़ा सा पता नहीं आप इस पर जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या देना चाहेंगे भी नहीं. 2 जगह से मैंने सुना है कि पीछे से जरा बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की. एक तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ एक बार फिर आप लोग हाथ मिला लें,
और दूसरी चीज हमने ये भी सुनी है कि लालू यादव जी से भी बातचीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब दोनों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जरा बताएं अंबेडकर साहब प्लीज। सर आपने ही इसका जवाब दिया है कि शायद मैं इसका जवाब ना दे पाऊं सर ये क्या क्योंकि है सर? ये सब पॉलिसी मैटर्स है, वो हमारे प्रवक्ताओं के पास नहीं आती है सर। सर मैं एज ए प्रवक्ता नहीं पूछ रहा हूँ, आप बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे मालूम है कि इस बार की विधानसभा में आप विधायक होंगे, ये भी हमें मालूम है। लेकिन नहीं, सर मैं आप आपकी शुभेच्छा के लिए धन्यवाद। मैं खुद होके बोल दिया है कि पार्टी में मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, जी। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, ना मैं लूंगा। जी, जो भी मना करता है ज्यादातर उसको टिकट दे दी जाती है ये ऐसा भी होता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके लिए बहुत कैंपेन कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें सर। लेकिन आपने कुछ सुना तो होगा सर, बहुत बहुत चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि लालू जी और उद्धव जी के साथ एक बार फिर सुलह हो जाए भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा है क्या? सर आप जो मीडिया के लोग हैं ना, वो राजनेताओं से एक पैर आगे रहते हैं, तो आपको पहले पता चलता है, तो आपको शायद पता चला है, तो हो सकता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ जी, ना। अरुण कुमार जी से पूछते हैं। No, I also want to ask one, जी, बोलिए। अंबेडकर बोलिए, साहब, बोलिए। ये जरांगे ओबीसी मराठा रिजर्वेशन, फडणवीस साहब ने क्लियर कट कहा कि जिस प्रकार से उनको टारगेट किया जा रहा है जरांगे पाटिल जी को, उन्होंने कहा कि जरांगे पाटिल जी आप पहले लिख के लेके आओ शरद पवार जी और कांग्रेस से कि अगर इफ दे कम टू पावर दे विल सी दैट मराठा का जो कोटा है वो ओबीसी कोटा से आएंगे। बोले हम कोई भी, हमने सब लोग मिलकर साइन किया है, असेंबली में कहा है, पास कर दिया है कि कोई भी कोटा को हम इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा? इस शरद पवार जी किस प्रकार से देखते हो? जरांगे पाटिल जी रोज रोज फडणवीस साहब पे आरोप लगा रहे कि आप ये रोकना चाहते हो, ये करना, हाउ डू यू सी दैट अंबेडकर साहब? सर जरांगे पाटिल कोई बहुत बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक एक्टिविस्ट है। कोई भी एक्टिविस्ट जब एक्टिविज्म करता है तो उसमें एक जोश रहता है, वो जोश में वो जो भी बोलता है खुद आगे जाके उनको खुद को साल 2 साल में 5 साल में इसका उनको मालूमात हो जाएगा, या उनको समझ में आएगा कि अपन ने ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। और इसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी में कोई भी कुछ भी बात कर सकता है। लेकिन मगर इससे इफेक्ट तो पड़ेगा ना सर, अंबेडकर साहब। फडणवीस साहब ने जी। बहुत पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है कि उनसे लिख के लेके आओ, फिर हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज है सर, फडणवीस मत करो। जो प्रदीप जी ने अभी आपसे पूछा, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना सर। क्या है कि सामने दांगड़ समाज के जो लोग हैं, जैसे लक्ष्मण हागे साहब हैं, वो आगे सामने वो पोषण पर बैठ गए। अब ये इधर से जरंगे पाटिल साहब जो हैं, वो कभी कभी फास्ट पे बैठ जाते हैं, फिर फास्ट हटा लेते हैं। तो सर इसका प्रभाव बहुत नेगेटिव पड़ रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लोगों के बीच में, हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, मालूम पड़ता है कि असल में हो क्या रहा है। तो अंबेडकर साहब, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा देखो, थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए? सर 2024 की जनरल इलेक्शन में जरांगे पाटिल फैक्टर जो है वो थोड़ा बहुत चला, और विशिष्ट एरिया में चला, पूरा महाराष्ट्र में चला नहीं। जैसा जरांगे पाटिल, ये नाम भी कोई हमारे कोकण में लेता नहीं है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी उनका इतना फॉलोअप नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है। तो उनका जो है एक विशिष्ट बीट डिस्ट्रिक्ट है, उधर उनका जो इलेक्शन के ऊपर उनका परिणाम हुआ, तो वो एक पूरा एरिया है जिधर पहले निजाम स्टेट था, वो निजाम स्टेट में ये ओबीसी और कुंबी, ये जो नोंदी है, वो नोंदी उधर थी। उनका पहले आंदोलन जो था वो निजाम स्टेट के, निजाम के पत्रक जो दस्तावेज थे, उनमें से जो नोंद है उसमें मराठा सबको घोषित करो, ऐसा उनका पहले आंदोलन था। उन्होंने आंदोलन जब शुरू किया और उसको उनके एरिया में अच्छा समर्थन मिल रहा है, ऐसा पॉलिटिकल लोगों को ध्यान में आया, जिसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मगर जो पेपर में पढ़ के आता है, लिख के आता है, आप जर्नलिस्ट ही लिखते हैं कि ही इज ए गाइडेड मिसाइल, वो तो फडणवीस साहब के ऊपर छोड़ा हुआ मिसाइल है। तो वो जरांगे जो है, जरांगे जी, उनको 5-6 साल के बाद में खुद का सब रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम गलत बात कर रहे थे। सर आई डिसएग्री विद यू, आई थिंक ही इज अ मिसगाइडेड मिसाइल। He is not a guided missile. सर अरुण कुमार जी, आपके पास आता हूँ। सर आपने कुछ ऐसा सुना है क्या अरुण कुमार जी, कि लालू जी या तेजस्वी जी की कोई बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसा कुछ है? लालू जी और तेजस्वी जी और भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मौत से समझौता कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नहीं। अगर ऐसा होता
जी। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी होते, और देश में सबसे बड़े जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो शुरू ही करते हैं कि भाई लालू यादव जी सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचारी है, तो उनके नजर में आज सबसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र अगर कोई होता तो लालू प्रसाद यादव। इसलिए ये सवाल तथ्यहीन है आपका, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं और है, नीतीश क्योंकि कुमार जी, लालू चाचा जी, प्रसाद यादव सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उनका जीवन समर्पित है, और भारतीय जनता पार्टी से समझौता का सवाल ही नहीं है। वो ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, उनके डीएनए में संविधान का विरोध है, लोकतंत्र का विरोध है, तो फिर सवाल कहाँ उठता है? तो No, अरुण I- कुमार जी, एक सेकंड, Yes, अरुण sir. कुमार जी, तो नीतीश बाबू के साथ दोबारा समझौता हो सकता है क्या? सुनने में आया हो रहा है, शायद दिसंबर जनवरी में हो भी जाएगा, ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, नीतीश बाबू तो सबसे पहले अविश्वसनीय चेहरा हो गए, फिर अब ऐसे अविश्वसनीय चेहरा से समझौता करने का क्या मतलब है? और आपने देखा पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने जनादेश देने का काम किया, और 15-16 एमएलए महागठबंधन जीत जाती बिहार में, तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। एनडीए से मात्र 12,000 वोट कम आया महागठबंधन का, और जबकि जग जाहिर है, ये देश की जनता जानती है, अपना देश के बल पर 100 दर्जन से अधिक जीते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार को एनडीए ने हराने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने एक सोची समझी साजिश की था। अरुण तो कुमार जी, बिहार की जनता वहां तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार के लोग दोनों पार्टी आपको भी और आप पे भी आरोप करते हैं, और नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन को भी आरोप, बोला कि 77 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे पास कोई प्लान ये दोनों बिग पार्टीज ने किया नहीं कि कोसी और गंडक रिवर पर कंट्रोल किस प्रकार से के। ये हर साल यानी इंडिपेंडेंस से पहले यही चक्कर चल रहा है, कोसी और गंडक पूरे तबाही मचा रहा है यूपी में, बिहार में। मगर दोनों पार्टी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार बीजेपी पार्टी हो, दोनों हैव फेड द पीपल ऑफ बिहार। पीपल जो लोग हैं वो त्रस्त हो गए दोनों लोगों से। तो इसमें क्या दोनों सचमुच दोनों आप सिर्फ एक दूसरे को आरोप लगाते हो, कंस्ट्रक्टिव काम कोसी और गंडक को संभालने का कोई काम नहीं हो रहा है। अरुण कुमार जी, चलिए, ये तो छाती ठोक ठोक के एनडीए के लोग, खास करके भारतीय जनता पार्टी से आप अगर सवाल करेंगे, या बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो वो सारा दोष जो है राष्ट्रीय जनता दल लालू जी तेजस्वी पर थोप देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार में 17-18 साल से बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है, पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आखिर बाढ़ और सुखाड़ से क्यों नहीं बिहार की जनता को मुक्ति दिला पाए, निजात दिला पाए इन सरकारों ने? ये तो सवाल बनता है। तो अरुण कुमार जी, आपसे एक सवाल पूछ रहा डंडे के हूं। चोट पर ये लोग जी जी, आपकी बात दुरुस्त है, जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इस वक्त आप पटना में हैं? अरुण कुमार जी, आप पटना में हैं ना इस वक्त? जी, आप पटना में हैं ना इस वक्त? पटना में। जी, हो सकता है कि आपको ये सवाल जरा ऊपरा सा लगे, बड़ा अजीब लगे। सर, चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, गुप्ता एम्पायर के, मौर्य एम्पायर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तब भी आता है कि ये कोसी में, गंडक में ये पानी ऐसी उफान पर आता था, बाढ़ आती थी, लेकिन लोगों को आदत पड़ गई थी बाढ़ के साथ रहने की। घर जो है वो स्टिल्ट्स पे बनाए जाते थे, लंबे लंबे खंभों पे बनाए जाते थे, हर एक के घर के अंदर कश्ती हुआ करती थी, और बाढ़ का पानी जब वापस जाता था तो अपने पीछे इतनी फर्टाइल सॉइल पीछे छोड़ के जाता था कि उसमें अगर दाना ऊपर से भी फेंक दो तो उसमें जो गंदम है वो फूट जाती थी। तो वैसा अभी हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जरूरी है कि दीवारी बनानी है, कॉन्क्रीटाइज करना है हर एक रिवर को?
आपसे पूछ रहा हूं, अरुण जी बताएं। देखिए, आप तो खुद बहुत बुद्धिमान जो है कि पत्रकार हैं। तब और आप आज के समय में तो धरती आसमान का फर्क है। पहले और आज, अब आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम लोग कितना डेवलप कर गए। अभी आप मुंबई में हैं और हम पटना में, और आपसे जुड़े हुए हैं हम लाइव शो के माध्यम से। जी। पूरे देश की जनता देख रही है। उस समय तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो अब वहां अब देखेंगे तो ये कतई अब ठीक बात नहीं। लेकिन जिसके हाथ में फिलहाल देश है और राज्य है, उस सरकार की जवाबदेही बनती थी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बिहार की जनता को और इन सरकारों ने इसे जो है एक तरह से भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया, भ्रष्टाचार करने का जरिया बना लिया। जी। तो इसलिए इस तरह से अभी बिहार की जनता जूझ रही है। इसके लिए दोषी बिहार सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसमें कतई। अब ये बात जो आप कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं अरुण कुमार जी। आपने जो अभी बात कही है ना, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आई एम श्योर अंबेडकर साहब भी बिल्कुल सहमत होंगे। क्या है कि जिस सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इस पे बहुत देर से काम कर रहे हैं कि बाढ़ के साथ कैसे निपटा जाए। कि पहले के लोग क्या किया करते थे, प्राचीन भारत में लोग बाढ़ के साथ कैसे निपटा करते थे, कैसे रहा करते थे, वहां पर क्यों नहीं होता था ये सब, हाहाकार क्यों नहीं मचती थी। अरुण कुमार जी, वो इसलिए है कि ये जो अभी जो हम लोग सॉल्यूशंस लाते हैं ना, बराज बना दिया, डैम बना दिया, कॉन्क्रीटाइज कर दिया, इसमें हजारों करोड़ों की लागत आती है। जहां पर हजारों करोड़ों की लागत आती है वहां पर सबका फायदा होता है। 1000 करोड़ इधर, 500 करोड़ इधर, 600 करोड़ इधर, ऐसा होता है। जो सोल्यूशन हम लोग बता रहे हैं उसमें किसी का कुछ खर्चा नहीं है। जहां पर खर्चा नहीं है वहां पर सरकार का इंटरेस्ट नहीं है, सीधी बात है। क्या आपको ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस आपको ये है अरुण कुमार जी? देखिए, ये एक तरह से आपकी जायज है, क्योंकि हम देख रहे हैं और सरकार दावे करती है कि हजारों पुल पुलिया हमने बनाया जी। उसी तरह ताश के पत्ते की तरह ढह रहा है। अभी देखिए, अभी स्मार्ट मीटर की भी बात हम लोगों ने चर्चा की, उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार का बेनिफिट, तो इसलिए सरकार ऐसी योजना चला रही। सड़क पर लोग हैं, लोग नहीं चाहते, पुरानी जो व्यवस्था है वही चाहते, लेकिन सरकार कहती नहीं, हम जो व्यवस्था लागू कर रहे हैं उस व्यवस्था को अपनाना होगा। अब देखिए, इन्हीं सवालों को लेकर कल अरुण कुमार जी, मगर जन सुराज पार्टी ने आपको और दोनों को, बीजेपी एंड नीतीश कुमार जी को, जो शिक्षक बिहार शिक्षक बहाली जो डोमिसाइल क्लॉज आप दोनों ने मिलकर हटाया, शिक्षक वर्ग पर आप दोनों मिलकर आपने जो नुकसान पहुंचाया है शिक्षक वर्ग को, जन सुराज पार्टी आप दोनों को कहते हैं कि आप शिक्षक विरोधी जो डिसीजन लिए आप भी उसमें शामिल हो, तो कितना सच्चाई है उसमें? देखिए, ये जो प्रशांत किशोर जिसकी बात आप बोल रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अब यहाँ संगठन निर्माण करने को सोच रहे हैं। अभी निर्माण हुआ नहीं है राजनीतिक दल, है ना। तो इसका टारगेट है कि भाई तेजस्वी यादव जी इतने पॉपुलर हैं। अब 2025 में भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो तरह तरह का ये अभी अपना षड्यंत्र रच रहे हैं। कई अभी चुनाव आते आते कई अभी और राजनीतिक संगठन बनने हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं अपनी बातों को समाप्त कर दूंगा एक लाइन में। और जहां तक आपने कहा, 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी सरकार में थे, महागठबंधन की सरकार थी नीतीश जी के साथ, पहली बार 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। जो डोमिसाइल की बात आपने की, डोमिसाइल तो हमारे एजेंडे में, क्योंकि हमारी सरकार नहीं, जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव जी, उसी दिन डोमिसाइल नीति लागू होगी।
उसके बावजूद भी अगर देखेंगे ओवरऑल शिक्षक नियुक्ति की बात ही आप कर लें तो उसमें लगता है कि 11-12% लोग ही अदर बिहार से बाहर के तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, बिहार के लोग ही अन्य स्टेट में जाके जॉब करते हैं, अन्य स्टेट के लोग भी आते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसको अगर तूल दे रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, तो ये उसकी सोच है। जी अंबेडकर साहब, तो प्रशांत किशोर जी आपकी बी टीम है सर, ये जैसे आम आदमी पार्टी भी आपकी बी टीम है, प्रशांत किशोर भी आपकी बी टीम है, कितनी बी टीम्स लेके चल रहे हो सर? ये वंशवादी पार्टी के लोग रहते हैं ना, जी। जो लालू जी को जेल होने के बाद में राबड़ी देवी को, जिनको सिग्नेचर करने को आता नहीं, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, इनकी सोच ही ऐसी है, तो इनको सब बी टीम ही दिखते हैं। अभी ये कभी ABCD करते करते ये कभी जेड पे जाएंगे और फिनिश हो जाएंगे, इनको मालूम नहीं पड़ेगा। अभी दुनिया बदल गई है सर, और जो नौजवान है उसको सब बातों का पता चल गया है कि कौन अपना रक्षक है, कौन अपना भक्षक है, और किसके फैमिली में वोट देना चाहिए। प्रशांत किशोर जी बी टीम रहो या ना रहो, एक जेन्युइन सोशल वर्कर है, उनका एक काज लेके वो आज काम कर रहे हैं, तो उसको सरासर बी टीम बोलना ये कोई वंशवादी पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता, माफ कीजिए। तो बी टीम नहीं है? नहीं, वो नहीं, 100% नहीं। अरुण कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? इनके अरुण कुमार जी इनके बोलिए। ये वंशवादी की बात कर रहे थे, शायद इनको जानकारी नहीं है, इनकी सरकार है केंद्र में, सारे वंशवादियों की जो वंशवादी पार्टी है उन्हीं के सहारे पर नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने हुए। वंशवादी की बात करते हैं, अगर लिस्ट देखेंगे सारे भ्रष्टाचारी, बताओ नीतीश सारे कुमार का वंशवादी वंश कौन भारतीय है? जनता पार्टी के पास। नीतीश कुमार समझे का ना? सक्सेसर कौन है, बताओ उनके घर में, बताइए। नहीं, अब नरेंद्र मोदी जी का तो नीतीश परिवार है कुमार ही, का नीतीश सक्सेसर जी कौन है कुमार बिहार में, आप बताइए, किसको प्रमोट कर रहे हैं वो? नहीं, खुद के लड़के प्रमोट हैं क्या उनके? सारे उनके लड़के हैं क्या? उनकी वाइफ है नहीं क्या? नहीं उनका उन, कोई मैं भाई है क्या? नहीं अब उनके पारिवारिक ग्राउंड पर आप जाएंगे, आप समझ लें। अब नरेंद्र मोदी जी के पारिवारिक ग्राउंड पर मैं बोलूं तो ये शोभा नहीं देता अरे है उनको ना। वंश से नहीं लेकिन है, आप उनको सुनिए वंश ना, को आप प्रमोट सुनिए नहीं ना, करना है। आप सुनिए ना, मैं सुन लीजिए ना। इतनी ही परिवारवादियों से नफरत है, चिराग जी के साथ क्यों, रामविलास जी के भाई के साथ क्यों गठबंधन किए हैं, मांझी जी के साथ क्यों किए हैं, उधर शरद पवार जी के भतीजे शरद पवार जी से क्यों गठबंधन किए हुए। यूपी में कई पार्टियां हैं जो वंशवादी पार्टी है, सबको गले लगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब बिहार की ही मैं बात करूं तो 40 सीट में 14 जो वंशवादी पार्टियों से जो जुड़ा हुआ है उन्हीं को टिकट देने का काम किया। अभी डिप्टी सीएम जो बिहार में ही हमारे ही आदरणीय लालू जी के पाठशाला से वो नाबालिग से बालिग होकर गए हैं, सम्राट चौधरी जी, वो भी उनके पिता राजनीति में, रविशंकर जी के भी पिता राजनीति में, विवेक ठाकुर जी के भी पिता राजनीति में, सारे के सारे जो अभी गिनाने लगूं तो 2-3 दर्जन जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सब जो है कि अपने उनके पिता हैं, दादा हैं, रहे परदादा रहे राजनीति उस घराने धो रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब ये क्या है, ये क्या है? बोलिए तो बोलिए लालू विवेक यादव अंबेडकर जी। जी या उनके परिवार के सदस्य में काबिलियत है, जनता प्रमोट कर रही है, तो वंशवादी हो गए, You want to answer that? परिवारवादी हो गए, गजब है। अंबेडकर जी, you want to answer that? उन्होंने गिना है, Yes, बहुत सारे गिना है। आपके साथ भ्रष्टाचारी चले गए तो सदाचारी हो गए। अजीत मैं पवार से जरूर लेके बात हेमंत करना बिश्व चाहता शर्मा हूँ से सर, लेके भाजपा का एक भी मुख्यमंत्री बताइए कि जिसको पद से हटना पड़ा तो उसने अपने वाइफ को, जिसको कोई अनुभव नहीं है, क्यों उसको नहीं? अपना अरे मुख्यमंत्री भैया, बनाया। ये राजनीति मेरे को बताओ, कैसी इसको बात आप कर रहे हैं? वंशवाद बोलते आप हैं। और मैं वंशवाद बता ये रहा हूं। नहीं है कि मैं अपने घर में से मैं कोई मैं मैं बता आगे रहा हूं। की पीढ़ी उसमें आई, मैं उसको वंशवाद नहीं बोलते हैं। मैं सोनिया गांधी 17 साल
कांग्रेस के अध्यक्ष पद को होल्ड करके रखी, क्योंकि उसको राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना था। इसको वंशवाद बोलते हैं। बोलिए आप, अमित शाह ने अपने लड़के को पॉलिटिक्स में लाया क्या? नरेंद्र मोदी जी को कोई लड़का है क्या? आप ऐसा बोलो ना, जिसको है वो अपने कर्तव्य, आप जैसा बोल रहे कि तेजस्वी यादव बहुत कर्तव्यगार है, तो उसमें झगड़ा क्यों है दो भाइयों में? क्योंकि वंशवाद का ही झगड़ा है ना। दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे हैं कि तू मालिक है इस गादी का, क्या मैं मालिक हूं? ऐसा क्यों झगड़ रहे हैं? फिर क्यों पब्लिक में आ रहा है सब चीज? बट डज इट रियली मैटर सर? देखिए, अंबेडकर साहब, क्या उससे कोई फर्क डेफिनेटली पड़ता है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैटर्स। इसीलिए ऐसे कमेंट होते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। भाजपा ने कभी कमेंट किया क्या कि तेजस्वी यादव ये कांग्रेस की बी टीम है? ऐसा कभी कमेंट किया हुआ आपने सुना क्या? नहीं सुना। तो इसीलिए जो बीजेपी की बी टीम है, इसकी बी टीम है, ऐसे कमेंट बाय नहीं, नेचर आते हैं इनको। कमेंट नहीं, ये सच्चाई है, आपको जानकारी नहीं है इसीलिए इस तरह की बात कर। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलने के लिए यही प्रशांत पांडे ने सिखाया, और नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा, अमित शाह के कहने पर हमने ये प्रशांत किशोर को जदयू ज्वाइन कराया और जदयू करा के उपाध्यक्ष बनाया। ये जाहिर है, ये मेरी बातें नहीं है, ये आपके पब्लिक तर्क के डोमेन में हिसाब आपने से, जो सवाल उठाया, आपके तर्क सुन के लीजिए। हिसाब से लालू जी यादव को चारा घोटाला करने के लिए नीतीश कुमार ने सिखाया अरे रहेगा, भैया, ऐसा मेरे को लगता अरे है। चंदा ने, अब बोलिए, चंदा लेकर धंधा देने के लिए तो इन्होंने ही सिखाया होगा भारतीय नहीं जनता नहीं, वो पार्टी तो को। और आपके लालू जी राष्ट्रीय यादव अध्यक्ष को बंगारू लक्ष्मण चारा घोटाला कैमरा करने के कैमरा लिए पर नीतीश पैसा, कुमार ने ही सुन सिखाया लीजिए था, ना, ऐसा भी बोलिए आप। कैमरा क्योंकि पर आपका लॉजिक ही कैमरा अजब पर है ना, अजीबो गरीब यादव सुनिए, आपका लॉजिक है। सुनिए, ये तो सोची समझी साजिश है, जग जाहिर है, लेकिन पूरे देश में राजनीतिक इतिहास में पहला राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी ऑन कैमरा पर पैसा लेते पकड़ाया और उन्हें कोर्ट ने सजा दी। ये है आपकी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, और वो बिहार बंगारू में भी लक्ष्मण जी को सृजन घोटाले से भारतीय ले, जनता पार्टी ने इमीडिएटली हटाया। ये भी बात ध्यान में रखिए। अरे आपके अगर जैसा बात हटाया जेल वो, में जाके आने नहीं, के बाद में वो भी मैं ही मुख्यमंत्री, ये ऐसा कभी है, नहीं किया। नहीं, लालू जी यादव को कोर्ट को नहीं, हटाना पड़ा, वो अभी मुख्यमंत्री पद नहीं, छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे, और फिर छोड़ा तो छोड़ा, और फिर अपने मिसेस को उधर बिठाया। ये ऐसी गलती तो हम नहीं कभी नहीं, करते। मिसेज, बंगारू लक्ष्मण के अरे लड़के सुन को हमने लीजिए ना, अध्यक्ष नहीं बनाया। I'll come to विधायक दल के नेताओं ने personal politics. चुना, Go ahead, go You ahead. know, Vinayak Ambedkar मतलब जी, आदरणीय हैं, विनायक अम्बेडकर जी महाराष्ट्र विधायक दल के में, नेताओं ने कर महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे ने मुंबई सेनेट इलेक्शंस में 10 के 10 टोटल स्वीप कर दिया है, 10 के 10 सीट टोटल स्वीप कर दिया युवा मुंबई सेना ने, यूनिवर्सिटी। तो कहां ये, क्या ये संकेत है? क्या बीजेपी को सोचने पर मजबूर करेगा कि ये क्या मायावती का क्या हाल होने वाला है? किस प्रकार से देखते हो? भले फडणवीस साहब कह रहा है कि दिस इज नो इंडिकेशन, बट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स सी दैट दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन वेयर द पीपल आर गोइंग टू वोट अम्बेडकर साहब। कैसे देखते हो अम्बेडकर साहब? Especially the young people, sir. आपके सर, लिए युवा वोट जो है आपके आपके हाथ से निकल गया है, बोलिए। ये कहा जा रहा है। बोलिए अम्बेडकर साहब। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूं बोलिए कि सर। मैं पुणे यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर हूं। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का सिंबल। Yes, मैं yes, we खुद can. सीनेट मेंबर हूं। हाँ। मैं भी चुन के आया हूं, और क्या होता है ये मुझे 100% मालूम है। मेरा 3rd ईयर चल रहा है अभी, तो मुझे सीनेट इलेक्शन जो है वो कोई इंडिकेशन नहीं है। ऐसा जो देवेंद्र जी ने बताया है वो 100% सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इलेक्टोरल रोल है वो कॉलेज स्टूडेंट्स है, और जो कोई जाके हर कॉलेज में कैंपेन चला के अपने मेंबर्स को रजिस्टर करता है उसका जीत होता है। ये तो पुणे में हमारा भाजपा जीत के आया है, मैं भाजपा का कैंडिडेट करके उधर चुन के आया हूँ। Yes, yes, you have done. Congratulations to you, Ambedkar साहब। But the only thing is, sir, but the only thing is the wind seems to be blowing against you, sir. अभी तो हवा पूरे देश Definitely में not. शायद आपके खिलाफ चल रही Definitely है। not. Definitely not. You sure? Yes, 100% sure. Sir, because whatever survey we are getting, जो भी सर्वेक्षण हमको आ रहा है, भले कहीं से भी आ रहा हो, भले बिहार से आ रहा हो, उत्तर प्रदेश से आ रहा हो, महाराष्ट्र से आ रहा हो, हरियाणा से आ रहा हो,
झारखंड से आ रहा हो, हर जगह से हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रही है सर। 100% नहीं है सर ऐसा कुछ। जो वोटर्स है वो जी। भारतीय जनता पार्टी के 2019 में जितने थे उसे 2024 में बढ़े हैं। हाँ, एक वोटर में एक टाइप रहता है कि जिसको हम फेंस सीटर बोलते हैं, कि जो इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, कमिटेड वोटर जो नहीं है कोई पार्टी का, उस वोटर को लुभाया गया, उस वोटर को बहकाया गया, उसका इफेक्ट है। बाकी कोई भी इफेक्ट नहीं है। भाजपा का जो कोर वोटर है वो आज भी इंटैक्ट है, वो पूना में है, महाराष्ट्र में है, भारत में है, पूरे भारत भर में लेकिन सर हमारा ये फिर वोटर क्यों कहा जा 100% रहा है। है कि हरियाणा की 90 सीटों में से ऑपोजिशन को विपक्ष में, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस को ही सीटें जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है, तकरीबन 65 या 70 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं, ये कहा जा रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर में भी ये कहा जा रहा है, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो युति है वो शायद जीत के आएगी, ये भी कहा जा रहा है सर। आपने जो पहले 4 स्टेट के इलेक्शन हुए थे जी। तो राजस्थान में 100% कांग्रेस इस बार जीत के आएगी ऐसा कहा जाता था, कहा है जा कि रहा नहीं? करेक्ट था। सवाल ही नहीं। तो इलेक्शन इज ए इलेक्शन, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ बात करके कोई फायदा नहीं है। जो मतदार राजा है वो राजा उसका डिसीजन जब देगा तब विनम्रता से उसको स्वीकारना, इतना ही सर अपना एक काम छोटा सा सवाल, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी, आफ्टर दैट I'll put the same question again to No, I also want to ask him about the जी। बदलापुर एनकाउंटर। पहले आप पूछ लें सर, उसके बाद अंबेडकर साहब, ये एनकाउंटर को हाई कोर्ट ने बहुत सारे छेद निकाल दिए, करीबन 10। उन्होंने कहा कि ये 10 चीज मुझे ऐसा अचंभा है कि आपने सर पे फायरिंग कर दिया है, आप पैर पे कर सकते हो, 4-5 लोग मिलकर एक सिविलियन को हैंडल नहीं कर पाए जो पुलिसकर्मी है, और पुलिसकर्मी जो सिविलियन है कैसे पुलिस का बंदूक निकाल के अनलॉक करके फायरिंग कर सकते। बहुत सारे चीज, बैलिस्टिक रिपोर्ट मांगा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगा है, मोबाइल रिकॉर्ड्स मांगा है। तो हाउ डू यू सी, हाई कोर्ट ने जब प्रश्न पूछे, डज इट इज अ पोस्टमार्टम ऑन द एंटायर इंसिडेंट कि दिस इज नॉट एन एनकाउंटर? अंबेडकर साहब, हाउ यू गोइंग टू एक्सप्लेन टू द पीपल? ना, लोगों को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों को इसमें रुचि जो थी वो रुचि, जैसा आपने देखा पहले दिन जो आंदोलन हुआ उस टाइम में आपने महिलाओं को देखा रहेगा कि आज के आज उसको फांसी दो, ऐसा आपने सुना रहेगा, आपने भी दिखाया रहेगा आज के आज इसको फांसी दो, हम जी। तब तक यहाँ से रेल पटरी से हटेंगे नहीं, ऐसा महिलाएं बोल रही थी। तो वो महिलाएं कुछ इसके बारे में ज्यादा जानना चाहती है ऐसा मुझे लगता नहीं है। लोगों में एक बहुत बड़ा एंगर था इसके अगेंस्ट में, और वो एंगर में हाईकोर्ट का क्या कहना है, हाईकोर्ट सुप्रीम है और वो उनका काम कर रहे हैं, उनका काम उन्होंने करना चाहिए, पुलिस का काम पुलिस ने करना चाहिए। जनता को जो उससे बोध लेने का है या जो उसमें से रुचि लेने का है या जो सबक लेनी है वो जनता जरूर लेगी। लेकिन यहाँ पर अंबेडकर साहब चलते चलते आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अभी तक क्या है कि जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी की जो इमेज है आज की तारीख में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा चढ़ा करके हर जगह पर है। आपको लगता नहीं है दैट इटसेल्फ मे बी वर्किंग अगेंस्ट यू, कि मोदी जी की जो इतनी बड़ी आप लोगों ने जो इमेज बना दी उसी की वजह से आज की तारीख में आज बीजेपी को घाटा हो रहा है? क्या है, यू एक्सपेक्ट हिम टू सक्सीड एवरीवेयर बट यू कांट सक्सीड, लेट्स बी वेरी क्लियर। आपको लगता नहीं है कि अगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी आराम से, ईमानदारी से, बड़े प्यार से, ह्यूमिलिटी से अगर काम करे, लोगों के बीच में काम करे, आफ्टर ऑल व्हाट इज द बिगेस्ट स्टोरी? आप ये देखिए ना, मोदी एक्चुअली इज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ इंडिया। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, हमारे में से ही है ना, लोगों के बीच में से है। आपको लगता नहीं कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, इसके बावजूद कि ये प्रोजेक्ट करना कि भाई आई एम नॉट बायोलॉजिकल, आई एम नॉट दिस, मोदी जी जैसा कोई है ही नहीं। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं और मैं संघ की भाषा बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें कि भाई ये हम लोगों ने अचीव किया है, यहां पर हम लोग फेल हुए हैं और हम आप लोगों का साथ चाहिए कि इस तरीके से हम लोग एक एक समस्या का हल निकालेंगे। आपको लगता नहीं कि ऐसा करना चाहिए सर अंबेडकर साहब? ऐसा ही चलता है। मैं मोदी का अभ्यासक हूँ और मोदी जी कभी भी उनका कोई भी भाषण आप निकाल के देखिए। सर मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं मोदी जी के जो आसपास आपने जो मशीनरी लगा रखी है उसकी बात कर रहा हूं। मैं सर मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं। जी। ऐसा कोई भी मशीनरी हमने लगाया नहीं है और ऐसा पार्टी का उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि उनका ही ये देना चाहिए, मगर मोदी की जो नेचुरल अपील है वो नेचुरल अपील तो यूज में आएगी ना।
और पार्टी ऐसा कुछ नहीं है कि उनके अपील के ऊपर ही डिपेंडेंट है। पार्टी अपना काम करती है और पार्टी का जो रूल्स है उसमें वो बैठता है कि बाबा अपना जो लीडर है उसके बारे में अच्छी बात करना। मगर आपको मैं बहुत कंफर्म बात करता हूँ कि मोदी इज नॉट बायोलॉजिकल वगैरह ऐसा कोई बात मोदी जी ने तो खुद किया नहीं। कोई गिने चुने लोग हैं, जैसा पुणे में एक हमारा कार्यकर्ता था, तो पहले टर्म में उसने मोदी जी का एक स्टैचू बनाया अपने घर में और उसकी पूजा करने लगा। मेरे को उसका नाम मालूम है, मैं खुद जाके स्टैचू देख के भी आया हूँ। उसको तुरंत मोदी जी के ऑफिस से फोन आया कि आज शाम तक वो स्टैचू उधर से हटाना चाहिए। मैं उसका नाम जानता हूँ, मैं उसका घर जानता हूँ, मैंने स्टैचू देखा है। तो मोदी जी को खुद को उनको ये करना जो क्या बोलता है गॉड जैसे इमेज बताना, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका हमेशा का ये कहना है कि मुझे ये जिम्मेदारी दे दी है और मैं जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ये खाली एक नेचुरल कोर्स में मेरे पास आया, इसलिए मेरी पूरी क्षमता से मैं निभा रहा हूँ। राइट। अरुण कुमार जी, बिहार में मोदी जी की जो एक जमाने में अभी 2014 में, उसके बाद 2019 में जो इमेज थी, क्या अभी भी वैसी है या कम हुई है अरुण कुमार जी? बहुत कम हुई है। मोदी जी 39 सीट जीते थे, बिहार की जनता ने 39 सीट एनडीए को दिया। इस बार 30 सीट और 1 दर्जन से अधिक सीटें क्लोज फाइट में, बहुत कम वोट से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीट जीती थी अकेले, जो है जेडीयू, और इस बार 12 पे। और पिछले चुनाव में आप देखेंगे 2019 की लोकसभा चुनाव में तो 3.5 लाख से 4 लाख से एक एक उम्मीदवार उनके चुनाव जीते थे। इस बार कहीं 12,000 से, कहीं 7,000 से, कहीं 5,000 से, दर्जनों ऐसी थी। तो इसलिए बिहार की जनता ने तो पूरी तरह इस बार भी उनको नकारने का काम किया। तभी तो 400 का नारा लगाते थे, 400 पार। और 19 में 303 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और इस बार 240 थे। और लगता है कि 50 सीट ऐसी हैं जो एक। जी प्रदीप जी, आप कुछ अरुण कुमार जी, महाराष्ट्र ने राह दिखाया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया था कि बलात्कारियों पे किस प्रकार से हम इमीडिएट जस्टिस दे सकते हैं, और लोगों ने सराहा उसके लिए। तेजस्वी यादव जी ने 20 इंसिडेंट्स आज ट्वीट करके बोले कि 20 जगह जिस प्रकार से बलात्कार हुआ है, 20 जगह, चाहे वो सासाराम हो, चंपारण हो, बेगूसराय हो, मधुबनी हो, जहानाबाद, कैमूर, गया, तेजस्वी यादव ने दिखाया कि बलात्कार खुलेआम हो रहा है। और सरकार तो क्या यहां जहां एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया इमीडिएट जस्टिस, एनकाउंटर, क्या आपको लग रहा कि वैसे ही वहां कुछ ठोस करना पड़ेगा सरकार को भय निर्माण करने के लिए बलात्कारियों पर? अरुण कुमार जी देखिए यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और अपराधियों के मन से शासन प्रशासन का भय समाप्त हो गया। और खास बात देखेंगे तो सत्ता संरक्षित लोग ही यहाँ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो फिर क्या होना है? इसलिए बिहार की जनता भगवान भरोसे। बिहार की जनता भगवान क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर जैसे एनकाउंटर हुआ वहां पर भी एनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों का, बलात्कारियों का? एनकाउंटर का तो बात दूर की बात है, जो विधि सम्मत है, जो नियम कायदे हैं, कानून है, उसके अनुकूल तो प्रशासन शासन काम करे। तो शासन नाम का चीज नहीं, प्रशासन नाम का चीज नहीं। सरकार खुद अपराधियों को संरक्षण दे रही, तो फिर क्या उम्मीद करेंगे? सरकार की मंशा है ही नहीं। सरकार, बिहार की जनता बीमारू हाथों में है, सरकार बीमारू हाथों में है। क्या स्थिति? हर क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं की ही बात ना करें, पुल पुलिया, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन कहीं लीजिए ना। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय जी ने सवाल उठाया, 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। जी, एक आखिरी सवाल और नीति आयोग का भी आप रिपोर्ट देख लीजिए बिहार के संदर्भ में क्या है। जी देखा, सारी पुल खोलने का काम किया नीति आयोग ने, हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य,
रोजगार, जिस भी क्षेत्र की बात जी, करें, दुरुस्त सब बात। में सीसीटी है। अंबिका साहब, क्वेश्चन टू यू सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। ये कोई अभी कोई हिजबुल्लाह के लीडर है नसरुल्लाह, उनको इजरायलियों ने मार दिया सर। उसके शोक में यहां हमारे लोग क्यों डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं सर? वो अपना लीडर है क्या? मतलब हम लोगों की वहां पे क्या मोदी जी हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन? आई एम आस्किंग यू सर, क्या सरासर पैलेस्टाइन हिंदुस्तान के गलत साथ जुड़ गया है क्या? सरासर गलत है उन लोगों का। और भारत में ऐसे तत्व है, इसीलिए भारत अच्छी प्रगति नहीं कर पा रहा है। ये जो भारत विरोधी बर्ताव है इन लोगों का, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर अपनी महबूबा मुफ्ती जी जो आपकी पार्टनर रही हैं सर जम्मू कश्मीर में, आपकी जो सरकार थी उनके साथ, आप तो अलायंस में थे, उन्होंने अपनी कैंपेनिंग रोक दी। नसरुल्लाह जो जिन जनाब को इजरायलियों ने उड़ा दिया, उसके मॉर्निंग, उसके शोक के लिए 2 दिन के लिए उन्होंने कहा कि मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगी। ये क्या है सर? ये कुछ जरा समझ में नहीं आया। ये बहुत गलत है सर। लेकिन एक चीज है अरुण कुमार जी, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन का तुम नाम नहीं लोगे सऊदी अरेबिया में, मस्जिद में नमाज के बाद फिलिस्तीन के लिए कोई दुआ नहीं पढ़ी जाएगी, कोई भी मौलाना, कोई भी इमाम जो कि नमाज लीड कर रहा है वो फिलिस्तीन का नाम नहीं लेगा। तो भारत देश तो जबरदस्त है, यहां तो इतनी आजादी मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी और देश में होगी। अरुण कुमार साहब आप बताएं। देखिए, भारत का तो ताना बाना, यहाँ की सारी चीज एक अलग हटके, इसीलिए तो भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। लेकिन पिछले दिनों से जो सरकार बनी है, इस केंद्र की जो सरकार है, खास करके भारतीय जनता पार्टी, इस ताने बाने को तहस नहस करने पर तुली हुई है। नफरत फैलाना है, राजनीति करना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई में लड़ाने का काम। लेकिन ऊपर भी जनता यहाँ की सारी चीज समझती है। आप धीरे-धीरे पे आरोप है अब तुष्टिकरण ऐसे का, तत्वों को अरुण भी- कुमार जी, आप पे आरोप है तुष्टिकरण का। हर चीज सर- पे आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो। सर मुझे जाना है नहीं, नहीं, जरा- बिल्कुल। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, Yes, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल अंबेडकर नहीं। साहब, जय सिया राम, थैंक यू जी। अरुण कुमार जी आप बोलते रहें प्लीज। आप तुष्टिकरण क्यों करते हैं सर? हर बार आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? मुसलमानों की तरफ आपकी नहीं, दृष्टि नहीं। जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, बिल्कुल, ऐसा क्यों है सर? बिल्कुल। बोलिए। बिल्कुल नहीं। संविधान में जो निहित अधिकार है, और संविधान की हम बात करते हैं, संविधान रक्षा की बात करते हैं। जी संविधान के विपरीत जो भी लोग अपने राजनीतिक सिद्धि के लिए कदम उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उनके खिलाफ में हम लोग खड़े होते हैं। ये इसलिए जो बाबा साहेब ने जो बनाया है संविधान, खूबसूरत संविधान, उस संविधान की रक्षा की बात हम करते हैं। जी, वहीं तो भारतीय कहने का जनता मतलब ये पार्टी हुआ कि आप संविधान तुष्टिकरण की विपरीत बात राजनीति नहीं कर करती है। रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, और आगे बिहार में क्या होने वाला है सर, ये भी बता दें। अब क्या होने वाला है बिहार में, आगे क्या होगा? देखिए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। ये जो जन विरोधी सरकार पिछले 20 सालों से यहाँ राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार जो है, उसे हटाने और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का मन बिहार की जनता ने बना लिया है। क्योंकि तेजस्वी जी रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं, जन सरोकार से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर वो एग्रेसिव रहते हैं। क्योंकि एनडीए की जो सरकार है, हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। लेकिन एक चीज तो है, अगर आज की तारीख में भी मान लीजिए कल सुबह नीतीश कुमार जी उठ करके ये कहते हैं कि मैं तेजस्वी यादव के साथ वापस जा रहा हूं, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, हैरानगी नहीं होगी। मुझको ऐसा लगता है, उनकी रेपुटेशन ऐसी बन गई है बेचारों की। वो क्या करेंगे अब? नीतीश कुमार जी को तो आप अच्छी तरह जानते हैं अरुण कुमार जी। आपको लगता नहीं कि उनको अपने बारे में जरा सोचना चाहिए कि मतलब उनका नाम किस तरीके से चल रहा है अभी, उनकी रेपुटेशन क्या बन गई है अभी? क्या समझते हैं आप अरुण कुमार? इसीलिए तो बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया और अविश्वसनीय चेहरा है। इसलिए यहाँ का बच्चा से पूछेंगे तो बता देंगे।
मगर उसमें आप अरुण कुमार कोई सिंह बच्चा फैक्टर बच्चा नहीं। ये कह रहा है चुनाव कोई भी हो सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेगा, क्या सच्चाई कितना है? बोले कोई भी चुनाव हो सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेगा, या लालू यादव जी जीते या बीजेपी जीते सीएम नीतीश कुमार बनेगा, क्या कितना क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, आप देख लीजिए ना 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगी। 3 नंबर की पार्टी बन के रह गई जेडीयू, और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। मैंने तो पहले ही कहा, और 5-7 एमएलए जीत के हमारे आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। अगर शासनादेश के बल पर एनडीए एक षड्यंत्र के तहत 2 दर्जन से अधिक जीते हुए उम्मीदवार को चुनाव नहीं हराया होता तो अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर हम तेजस्वी लोग सब यादव जी देख रहे होते। हैं, लालू जी उस भी समय जीते तो भी नीतीश कुमार बनते हैं, बीजेपी भी स्कोर अच्छा करते तो भी नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार जी का रहस्य क्या है? वही सीएम बनेंगे? देखिए, शासनादेश के बल पे है ना, ये लोग बेजोड़ तोड़ की राजनीति करके, मैंने तो कहा अब वो धीरे धीरे वो चैप्टर क्लोज कहाँ थे नीतीश जी और कहाँ आ गए। 41 पे आ गए, 3 नंबर की पार्टी। तो कहा अभी भी लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल का बढ़ा, सीट राष्ट्रीय जनता दल का बढ़ा, महागठबंधन का बढ़ा, एनडीए ने खोने का काम किया अपना जनाधार, सीट खोने का काम किया, वोट प्रतिशत खोने का काम किया। तो ये स्थिति है। राइट, थैंक यू सो मच सर। अरुण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पटना बहुत से। बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय हिंद। Well, that was nice, except for the fact that Mr. Rakesh Shetty got a call from Nana Patole. Why does he always get a call from Mr. Nana Patole each time he's on our show? मुझे लगता है नाना पटोले साहब सिर्फ हमारा शो देखते रहते हैं सारा दिन। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यस, और उन्होंने जो एफआईआर के बाद के विनायक बिल्डर्स के बारे में प्रॉब्ली जी। क्लोज टू एकनाथ शिंदे, जी, तो प्रॉब्ली नाना पटोले जी लगता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू रैप द गवर्नमेंट। दैट्स राइट। सो नाना पटोले जी ने राकेश शेट्टी को तलब कर दिया कि एकदम इधर आ जाइए। ये ऐसा हुआ, इसकी वजह से राकेश शेट्टी साहब हमारे साथ नहीं रह पाए। लेकिन एक चीज़ तो है प्रदीप जी, मुझे ज़रा सरप्राइज हो रहा है। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स सेलिब्रेट इंडियन डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। I mean, everywhere else in the Arab world, nobody is allowed to go out on the streets. Whether it's Kuwait, whether it's Syria, whether it's Saudi Arabia. Exactly. Nobody is allowed to go out on the street, waving those Palestinian flags. Not in India. India, you're allowed. हिंदुस्तान, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो 72 फिरके हैं इस्लाम में, उन सब लोगों को आज़ादी है सिर्फ और सिर्फ एक ही देश में, कि अपनी तरीके से आप इबादत करें, अपने तरीके से नमाज पढ़ें, अपने तरीके से आपका नमाज का टाइम होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जहां पर कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मर्जी हो, शिया हो, सुन्नी हो, इस्माइली हो, आप आगा खानी हो, जो मर्जी हो, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है प्रदीप जी। बिल्कुल, हिंदुस्तान है, सिर्फ अकेले हिंदुस्तान में, और कहीं नहीं है। इसकी वजह से आई थिंक देयर इज अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज देयर इज नो कंसेंसस ऑन दिस। यस, कि गवर्नमेंट पॉलिसी को हमको सपोर्ट करना है, व्हाटएवर पॉलिटिक्स अपार्ट, मगर इस चीज में वी आर विद द गवर्नमेंट। दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर हैज टू प्रिवेल। राहुल गांधी जी भले हर चीज में बात करते हैं, बट जहां अपीसमेंट की बात आता है, दे दो स्टेप पीछे आ जाते हैं। No, but as far as Israel is concerned, or as far as the Palestinians are concerned, or as far as Hezbollah is concerned, let's be very clear. All those people, by the way, एक छोटी सी बात मैं बता दूं आप लोगों को, जो आज की तारीख में आप लोग हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हो ना, हिजबुल्लाह का जरा चार्टर पढ़ लीजिए कभी। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आपको फारसी आनी चाहिए। यस, बाय द वे, इट्स इन फारसी, इट्स इन पर्शियन, इट इज नॉट इवन इन अरबिक, बिकॉज हिजबुल्लाह वाज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द इरानियन पार्लियामेंट। Hezbollah is a Shiite organization dedicated to the destruction of all places where Muslims are allegedly being suppressed, and that, by the way, includes India. ये भी आपको बता दूं कि आज की तारीख में जो जितने लेफ्टिस्ट हैं, हमारे लिबरल दोस्त हैं और कांग्रेसी जितने हैं, जो बाहर आकर के इन सपोर्ट ऑफ हिजबुल्लाह आप झंडे लेकर के जा रहे हैं, अगर मान लीजिए गलती से, कब वैसे होने वाला तो है नहीं, अगर उनको मौका मिल गया ना, टारगेट आप भी रहेंगे। याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कुछ। The point is people don't read. The Hezbollah charter is very, very clear. Wherever Muslims are allegedly suppressed, including the entire India, not just Jammu and Kashmir, the entire India, they want to establish Shiite, Fatimid
Islamic rule here. Please do read out. There is a network which the government has to really work on. Yes. There's a big network that immediately connects all the, probably the masjids across India in such a way. We saw in Satanic Verses, you saw in Paris incident, we saw all these places, whenever anything happens, you have rallies out here, and the biggest one And was destruction of property here in destruction India. of property of India. In India. So here, I think collectively the political parties have to take a stand. Can That's we right. not allow this to happen? Because if there's a little appeasement from the opposition, whichever parties are there, this will grow. This will grow. It has to, together, all political parties have to come together Arey bhai, and say we are not going to support this kind of an activity. we are not concerned with whom you support. You are welcome to support whosoever you want to. But I didn't see any of these organizations, taking out rallies in support of the Bangladeshi Hindus बिल्कुल. who are still being murdered, still Yes. being raped. Bangladeshi हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो अभी भी तोड़े जा रहे हैं. Exactly. और ये भी कहा जा रहा है अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, दुर्गा पूजा तुम्हें तभी करने देंगे, इतने पैसे दो, जजिया दो, उसके बाद जाकर के तुम्हें दुर्गा पूजा करने देंगे. आज तक कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग द कांग्रेस जो बाहर आई है बांग्लादेशी हिंदूज के समर्थन में? आई रियली वुड लव टू नो. और एक कोई नसरुल्ला करके कोई बंदा है, वो मर गया वहां पे, जंग में मर गया. भाई फौजी था, जंग में फौजी मरते हैं, और आप उसके लिए रैली निकालेंगे? मतलब जैसे वो कहते हैं घर में अंधेरा है, मस्जिद में जाके दिया जलाएंगे. ये आप लोग कर रहे हैं. And we expect more such rallies in this Friday. I mean, this is going to be terrible. I find it most disturbing, and I am shocked at the fact that the BJP has not taken it up even further, or any of the other Hindutva parties. Why are you concerned so much with what is happening in Palestine, in Gaza, in Lebanon? Why aren't you concerned in your neighborhood? हिंदुओं के लिए हिंदू मंदिर जब तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की औरतों के साथ जब बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं का जब कत्ल हो रहा है, उसके लिए आप यहां पर कुछ नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे भाई? आप हिंदुस्तानी हैं ना? इंडिया फर्स्ट, लास्ट एंड ऑलवेज. मैं ये नहीं कहता दैट यू कैन नॉट, कि आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते. आप जिस मर्जी के लिए आप आंदोलन करिए, जरूर करिए. हिंदुस्तान में सबको आजादी है. हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जहां पे सबको इबादत की, पूजा की, आराधना की आजादी है. सिर्फ इंडिया में और कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है. लेकिन पहले आप अपने नेबरहुड की तो बात कर लें, पड़ोस की तो बात कर लें. Anyway, that's my That's take on perfectly this. fine. I mean, that's the way it should be. Yeah. It should That's be. it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. और आप जरा अपने कमेंट जरूर भेजते रहिए भाई. कमेंट जरूर भेजें. प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. वो घंटी बज गई, आज तो बड़ी जोर से बजी, मजा आ गया. लवली. तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. हम लोग हमेशा आपके साथ हैं. और जहाँ तक आज़ादी का सवाल है, प्लीज डोंट मिस्टेक मी. यहाँ पे आप मिसअंडरस्टैंड मत करिए. मेरा ये कहना है कि आज़ादी होनी चाहिए. हिंदुस्तान अभी तक हिंदुस्तान है क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक के पास आज़ादी है. किसी की भी आज़ादी के ऊपर आपको अंकुश नहीं लगाना है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज ठीक होनी चाहिए. किस चीज को महत्व देना है, किस चीज को महत्ता देनी है, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. Our संविधान says there's no absolute freedom. There's no absolute freedom. It is relative. It is always relative. It's always having a reasonable restrictions. That's right. Absolutely. आपको आजादी ये नहीं है कि हमारे enemy means I'm just talking similar enemy countries को आप सपोर्ट करें इस देश के अंदर बैठ के. That is not your part of the अरे भाई, आज तक कभी किसी ने जो बलोचिस्तान के अंदर हर रोज बलोच लोगों को जिस प्रकार मारा जा रहा है, उसके लिए तो उसके समर्थन में तो आज तक कभी आप आए नहीं. उसके खिलाफ तो आज तक कभी आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया, आज तक नहीं किया. कराची में मुहाजिरों के खिलाफ जो आज तक एक्शन चल रहा है, आप लोगों ने कभी, यू हैव नेवर डेमोन्स्ट्रेटेड, बट यू विल डेमोन्स्ट्रेट अबाउट पैलेस्टाइन. क्यों? तुम्हारे चाचा लगते हैं वहां पे, है? मामे के लड़के हैं वहां पे तुम्हारे. क्यों भाई? जब सऊदी अरेबिया ने बैन लगा दिया है वहां पे, हम तो ये बोलते हैं ना, रियाद में जाओ, करके दिखा दो, करो अगर हिम्मत है तो. Well, that's just about it. For me, it's a very, very emotional issue. My point is, we must concentrate and focus on what's in our neighborhood first before we go on to something else. Well, that's just about it. In tonight's show, do tell us what you think. आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपने कमेंट्स भेजें. जहां तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, we'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय हिंद, जय हिंद.